Hey guys, hello everyone. So, how are you? After a very long period of time, so I am coming in front of you, right? And welcome you all back again on my YouTube channel. So, this is Sriman Narayan. I am working as a GCP engineer at Convergent LLC, which is based out of USA. So, guys, if you are connected with me over LinkedIn, so this is my I can say LinkedIn profile. If you can go with linkedin.com/in/student-Sriman, so you will be able to get my profile, right? So guys, I had announced to start some video series regarding AI and data science. So if you can, if you had seen my previous post, so there I had announced all those things, and I had also posted one small curriculum regarding that. I can say that course. So if I can move to my post section, so there I think you will be able to get all those things, right? So if I can move with my post sections, so let me I think this one is that post. So yeah, so if I can go with this particular, I can say this curriculum. So here what I was thinking, so I have to start with stats part, ADA part, data processing part, visualizations part. I have to cover maybe some libraries again, like as pandas, matplotlib, numpy kind of a things, right? So then machine learning, deep learning, computer vision, and then if I can go with the second one. So second one is I think I'm not able to. Yeah, that's one. So this is image segmentation, tracking GANs, NLP, and all those sorts of things. So guys, so what I had planned that I will try to start one series of a long series which will be covering each and every aspects of AI and data science, right? So basically, this series will be helpful for those persons, those practitioners, data science practitioners who are looking for making their career transition into this field, right? And the very main thing about this course will be that so I'm not going to start this series in English language or in Telugu language, in Tamil language, or in any other language. I'm going to start this language, whole series just in Hindi language, right? So since again, so Hindi is our mother tongue, and so we all are good enough with Hindi. So what I believe that so again, see, language is not a concern, but for covering our own native peoples. So I'm just thinking for starting this all things in just in Hindi language. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पहले पिछले वीक्स में हमने अनाउंस किया था अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे कि हम कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक एआई बेस्ड ऑनलाइन क्लासेस होने वाला है, क्लासेस होने वाला है जो कि हमारे यूट्यूब पे ये होस्ट होगा, एंड ये सबके लिए फ्रीली अवेलेबल होगा। और इन कोर्सेज में इस सीरीज में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो ये एक छोटा सा करिकुलम हमने यहाँ पे हमने मेंशन भी किया था। सो हम स्टैट्स, एडीए पार्ट्स, मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम्स एंड डीप लर्निंग, कंप्यूटर विजन, एनएलपी, ये जो भी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों को हम डेप्थ में यहाँ पे हम कवर करेंगे। हालांकि यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ऐसे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जहाँ की ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, बट अगेन सो वो सारी की सारी चीज़ें इंग्लिश में है, हिंदी में बहुत कम ही मिलता है। सो यहाँ पे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स एंड प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स, एवरीथिंग मैं सब कुछ मैं हिंदी में ही कवर करूँगा और सब कुछ आपके सामने होगा, इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? तो आप अगर हमसे लिंक्डइन पे आप अगर कनेक्टेड नहीं हो तो आप मुझे ईजिली आप मुझे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो। ये मेरा प्रोफाइल है। अगेन इफ आई कैन गो विथ माय प्रोफाइल सेक्शन, सो ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है। सो linkedin.com/in/student-Sriman, यहाँ से आप जा करके आप मेरे को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो एंड आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। एंड इफ यू गाइस कैन सर्च ओवर यूट्यूब, सो देयर इज अगेन, अगर आपको आइडिया नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें किस चैनल पे हो रही हैं, तो हमारे हमारे जो चैनल है इसका नाम है आर्ट्स ऑफ डीप लर्निंग। आप अगर यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो आर्ट्स ऑफ डीप लर्निंग तो आपको मिल जाएगी, राइट? आर्ट्स ऑफ डीप लर्निंग, राइट? तो आपको कुछ ऐसा आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एंड देन आपको मिलेगी। आपको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ वीडियोस आपको ऊपर में दिखेंगे, बट फोर्थ टू फिफ्थ डाउन पे हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ पे आर्ट्स ऑफ डीप लर्निंग आपको दिखेगा, चैनल आपको मिलेगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो
एंड देन ये सारी की सारी जो भी वीडियो कंटेंट्स है सब कुछ वहीं पे पब्लिश होने वाला है गाइस। तो चलिए अब हम अपने जो भी हमारे जो भी चीज़ें हैं तो हम अपने इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो सीरीज है किसके लिए है और मैं क्या कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है गाइस कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। Sorry guys, so actually I was just getting disturbed. Just wait, just give me some seconds, right? Yeah. So what I was discussing कि ये सीरीज किसके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन ऐसे स्पेशलाइज्ड पीपल्स हैं, पर्सन्स हैं जो कि इस सीरीज से बेनिफिट ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ये जो सीरीज होगी उन सभी भाइयों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो कि आई थिंक आई मीन वैसे सारे लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि अपना करियर ट्रांजिशन डेटा साइंस के फील्ड में कर सके, राइट। तो यहाँ से गाइज हम केवल वैसे हम उन सारे लोगों को हम टारगेट करने वाले हैं जो कि या तो स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपने कॉलेजेस में है, बीटेक कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं। तो वैसे सारे लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं जो एमटेक कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। आई थिंक आई एम नॉट टू मच गुड टू टीच पीएचडी ग्रेजुएट्स, राइट, बट टीचर्स आई थिंक कि आप सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट इस सीरीज से, इस कोर्स इन कोर्सेज से आपको मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एंड जो लोग अभी कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं, जो जिनका कहीं अभी ट्रांजिशन हो चुका है, तो उन लोगों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट्स यहाँ से मिलेगा। तो मैं उन सारे लोगों को यहाँ पे एज एन ऑडियंस मैं टारगेट कर करके और इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड दूसरी चीज़ ये होंगी कि सिंस अगर आपको एआई डेटा साइंस के बारे में अगर कुछ भी नहीं पता है तो फिर कैसे आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंस क्या होता है, एआई क्या होता है, इंजीनियर्स क्या होते हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं। तो बेसिकली इस फील्ड में कैसे आप अपना करियर बनाते। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको ब्रीफ में ये बताना चाहते हैं कि ये एक नई तरह की एक फील्ड है जहाँ की हम कुछ नए टॉपिक्स को सीखते हैं। जो भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम यहाँ पे सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर हम जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जब हमें जॉब्स मिलती है हमारे मतलब कंपनी से आपके लिए कॉल्स आती हैं, आप इंटरव्यूज देते हो, फिर आपकी हायरिंग होती है, आप ऑनबोर्डेड हो जाते हो, फिर आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो एंड देन फिर आप अपना काम स्टार्ट करते हो। तो ये डेटा साइंस के कोर्सेज हैं, डेटा साइंस के टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को पढ़ करके आप एक डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। और एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या कुछ होना चाहिए, यानी कि प्रीरिक्विजिट्स क्या होनी चाहिए, क्या कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, कैसे आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। दूसरी जो आईटी सेक्टर की जो दूसरी जो जॉब्स हैं, लाइक एसटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर होता है, या फिर मे बी कोई भी किसी तरह का फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर होता है। तो उन सारे पोजीशंस के लिए आपका एक सीएस ग्रेजुएट होना इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अगर आप सीएस बैकग्राउंड से हो तो ही आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो या आप इस फील्ड में आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे सब चलेंगे। एक बीटेक ग्रेजुएट भी चलेगा, एमटेक ग्रेजुएट भी चलेगा, पीएचडी ग्रेजुएट्स भी चलेगा, एक सिंपल बीसीए ग्रेजुएट्स भी चलेगा, राइट, एमपीए ग्रेजुएट्स भी चलेगा, इवन यहाँ पे बीकॉम वाले ग्रेजुएट्स भी चलेंगे, बीएससी जनरल बैचलर्स ऑफ साइंस विथ एनी लैंग्वेज, इवन विथ साइंस, इवन विथ कॉमर्स, इवन विथ मैथमेटिक्स, इवन विथ एनी सब्जेक्ट, सब चलेंगे यहाँ। बशर्ते आपको इन टॉपिक्स में अच्छे होने हैं, आपको इन टॉपिक्स को डीपली जानना है, राइट। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, आपको इन चीज़ों को थोड़ा जानना पड़ेगा एंड फिर ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए आई थिंक कि ईजिली आपको समझ में आ जाएंगी। एंड देन आप जब एक अच्छे लेवल पे जब आप इन चीज़ों को आप समझ जाओगे, आप इनको प्रैक्टिस करने लगोगे, तो ईजिली आप एक डेटा साइंटिस्ट का पोजीशन ले सकते हो, ग्रैब कर सकते हो, एंड विथ in a good company with a good package and everything will be good there in your life। तो यहाँ पे एज अ प्रीरिक्विजिट्स कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए विथ एनी सब्जेक्ट। बट यस, इसके साथ में कंडीशन ऐसा है कि आपको
जो भी टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी उन टॉपिक्स को आपको दिल से पढ़ना है और उसको हमेशा आपने माइंड में रखना है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब बात आती है कि भाई पढ़ना क्या है और कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो कि यहाँ पे हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्या कुछ करना पड़ेगा। करेक्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ आपको डेटा साइंस को कवर करने के लिए आपको थोड़ी बहुत कुछ कुछ टॉपिक्स आपको कंप्यूटर साइंस से उठानी पड़ेंगी, कुछ टॉपिक्स आपको बिजनेस यानी कि जो एमबीए की जो क्लासेस होती है वहाँ से उठानी पड़ेंगी, अ लिटिल बिट अबाउट योर बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। कुछ कुछ चीज़ें आपको मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ी बहुत जाननी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको लाइक मैथमेटिक्स से उठानी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको स्टैट्स की उठानी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको मे बी आई थिंक कि किसी दूसरे जो डोमेन जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो तो वहाँ से कुछ चीज़ें आपको उठानी पड़ेंगी। तो ये एक तरह का मैं बोलूँ तो एक तरह का इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन ऑफ मल्टीपल आई कैन से सब्जेक्ट्स, मल्टीपल फील्ड्स, उनके इंटरसेक्शन है यानी कॉम्बिनेशंस हैं। और इस कॉम्बिनेशंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप एक करेक्ट वे में, एक करेक्ट क्वांटिटी में आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कहाँ से करें और कैसे कैसे उन चीज़ों को हम कवर करें। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको जब भी एज ए डेटा साइंस डेटा साइंस में जब भी आपको आपकी जो भी स्टडी है, आप जो कुछ भी आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करना चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ठीक है, सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठानी है और उसे सीखनी है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कौन सी चीज़, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी। इवन इफ आई कैन यूज माई वाइट पैड, सो आई थिंक वेयर इज दैट, if I can go with some new whiteboard then I think it will be fine for me, right? So where is that? No, I'm not actually looking for. I think we can go with this one, but maybe yeah, we can go with text, right? So yeah, तो हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चाहिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, राइट। तो चूंकि अब पाइथन क्यों चाहिए भाई, पाइथन क्यों चाहिए और पाइथन क्या होता है। तो सबसे पहले कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, अगर नहीं पता है तो जान लो। कंप्यूटर्स पे कुछ भी करने के लिए, कंप्यूटर्स पे किसी भी तरह का फंक्शन कराने के लिए आपको एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। लाइक एज ऐसा होता है, समझ लो कि सपोज दैट कि यहाँ पे मैं बैठा हूँ और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड बैठा है। ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने फ्रेंड को बोलूंगा भाई मेरे लिए पानी लेके आ, तो मुझे पानी चाहिए और मैं अपने फ्रेंड से बोलूंगा कि भाई पानी लेकर के आओ। वो कैसे पानी लेकर के आएगा और क्या करेगा वो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी न किसी फॉर्म में अपने फ्रेंड को ये सारी चीजें मतलब बतानी पड़ेंगी। आप पानी पीना चाहते हो, आपको फ्रेंड कैसे जानेगा जब तक आप उसे बोलोगे नहीं। तो आप या तो बोल करके उसे आप मतलब बोल करके उसे कहोगे कि ठीक है भाई पानी लेकर के आओ, मुझे पानी पीना है, या तो आप लिख करके उसको ये करोगे। आप बोलोगे कि भाई ना तो मैं बोलूंगा ना ही तो मैं पेन पेपर से लिखूंगा, मैं तीसरा काम करूंगा। तो क्या करोगे भाई, तो बंदा बोल सकता है कि ठीक है मैं उसको व्हाट्सएप करूंगा, मैं उसको फेसबुक पे मैं उसको पिंग करूंगा, या फिर मैं किसी और मीडियम से उसको मैं टेक्स्ट करूंगा, लेकिन ये भी तो लिखना होगा। तो यहाँ पे मेन मोरल ये है कि आप किसी न किसी एक तरीके का इस्तेमाल कर करके आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, आप जो भी चीज़ चाहते हो आप किसी न किसी वे में आप सिग्नल को प्रोसेस कर रहे हो कि भाई मैं ऐसा चाहता हूँ तू ऐसा कर। तो यहाँ पे या तो मैं बोल के करूँ या मैं टेक्स्ट करके करूँ, एक मीडियम तो है। वैसे ही अगर मैं कंप्यूटर से अगर कोई काम कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मीडियम चाहिए होगा, और मीडियम क्या होगा, तो एक लैंग्वेज होगी। और जो भी लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, दैट्स फाइन। अब यहाँ बात आती है कि भाई कितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं। तो बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, उनके नाम
तो बहुत सारे उनके नाम है, आप गूगल कर सकते हो। सब कुछ मैं नहीं बताऊंगा, कुछ कुछ चीज़ें आपको गूगल करनी पड़ेंगे। आप गूगल कर लो कि लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देखो कितने सारे हैं। मैं कुछ उनमें जो पॉपुलर है मैं उनका नाम अभी ले रहा हूँ। जैसे आपका सी प्लस प्लस, जावा, PHP, पाइथन, then again there is HTML also, there is what I can say, बहुत सारी है भाई, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। जावा स्क्रिप्ट इज देयर, देयर इज ऑब्जेक्टिव सी, देयर इज सी शार्प, देयर इज रूबी, देयर इज व्हाट आई कैन से, भाई बहुत सारी है, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रही। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, टन्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन हमें क्या उन सारी लैंग्वेजेस को पढ़ना होगा? नहीं, आपको उसमें से केवल एक लैंग्वेज को पिकअप करना है। अगर आपको अपने कंप्यूटर्स पे कुछ भी काम कराने हैं तो आपको उनमें से केवल एक लैंग्वेज चाहिए होगा, आप उसको उठा लो और देन आप उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते हो। और प्रोग्रामिंग करने का मतलब क्या होता है? तो प्रोग्रामिंग करने का मतलब ये होता है कि आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर करके आप कुछ लिख रहे हो। जैसे आपने बोला कि मैं अपने फ्रेंड को पिंग करूंगा, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करूंगा कि भाई मेरे लिए पानी लेके आओ, वैसे ही यहाँ पे भी आप कुछ लिख रहे हो, भाई ऐसा करो। तो ये क्या होता है? इसी चीज को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, राइट? आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, मतलब आप कुछ ना कुछ सजेशंस, कुछ सिग्नल्स आप अपने कंप्यूटर्स को पास कर रहे हो, दैट्स ऑल। यही होती है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको केवल और केवल एक लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आती है कि भाई ठीक है, तो कौन सी लैंग्वेज हम पिक करें? इतनी सारी हैं, कैसे पिक करें, कैसे कंपेयर करेंगे? तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है कि थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत बेसिक आइडिया पता होना चाहिए सारे लैंग्वेजेस के बारे में, सारे नहीं लेकिन ऑलमोस्ट जो पॉपुलर है उनके बारे में, ठीक है? तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलते हैं मदर ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी सी से ही निकल करके आई है। सो सी इज नोन एज मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है? आप सी को सीख लो, सी को सीख लोगे, बाकी जो दूसरी लैंग्वेज रहेंगी आपके लिए सीखनी आसान हो जाएंगी, और जैसी रिक्वायरमेंट्स आती है वैसे आप कर सकते हो। तो आप सी सीखो, सी प्लस प्लस सीखो, जावा सीखो, जावा स्क्रिप्ट सीखो, पाइथन सीखो, PHP सीखो, जो सीखना सीखो, ठीक है? बट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको सीखनी पड़ेगी। अब यहाँ बात आती है कि भाई डेटा साइंस के लिए हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? सी सीखनी पड़ेगी, जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, जावा सीखनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा? PHP सीखना पड़ेगा, पाइथन सीखना पड़ेगा, HTML सीखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा फिर? तो यहाँ पे है कि भाई आप किसी भी लैंग्वेज में सारी चीजें कर सकते हो, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्शंस। बट जब से डेटा साइंस की इंडस्ट्री आई है, जब से लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ पे वो सारे के सारे वर्क्स करने के लिए ऑलरेडी लोगों ने पाइथन लैंग्वेज का सिलेक्शन किया है, और हमें भी अपना करियर पाइथन लैंग्वेज से ही स्टार्ट करना है, ठीक है? और हम पाइथन लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे सबसे फर्स्ट में, और पाइथन लैंग्वेज को सीखेंगे। अब आप पाइथन लैंग्वेज कैसे सीखोगे? तो पाइथन लैंग्वेज कैसे सीखोगे? तो भाई इसके लिए थोड़ा बहुत आपको गूगल करना पड़ेगा। आई थिंक यूट्यूब पे बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आप वहां से सीख सकते हो। गिग्स फॉर गिग्स करके एक वेबसाइट है, आप वहां जाकर के सीख सकते हो। बहुत सारी पाइथन की वो आती है, क्या बोलते हैं, आई थिंक बुक्स आती हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूटिलाइज एनी ऑफ द मीडियम्स, बट आपको पाइथन लैंग्वेज सीखनी है, इसकी जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो सीखना है। पाइथन के बाद क्या सीखना पड़ेगा आपको? तो पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज आपको सीखनी पड़ेंगी। और ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं? तो लाइब्रेरीज क्या होती हैं भाई? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सॉरी, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ वर्क्स को परफॉर्म कराने के लिए लोगों ने कुछ कुछ फंक्शंस को लिख रखे हैं, ठीक है? जैसे मान के चलो कि भाई आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें होती हैं? एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, या मे भी आपको चलो मान के चलो भाई आप मीन निकालोगे, मीडियन निकालोगे, एवरेज निकालोगे, आप उसके क्युमुलेटिव सम निकालोगे, कुछ ऐसी चीजें करोगे ना। तो ऐसे जितने भी ऐसे जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, सारे के सारे ऑल टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लोगों ने कुछ लाइब्रेरीज बना रखी है, ठीक है? तो यहाँ पे इन पाइथन लाइब्रेरीज में आपको सीखना पड़ेगा, जैसे में आपको सीखना पड़ेगा नमपाई। नमपाई को बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है? नमपाई के बाद आपका आता है दूसरा लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं पांडाज। मैथमेटिक्स की जितने भी फंक्शंस होंगी वो सारी की सारी आपको नमपाई के अंदर में मिल जाएंगी। पांडाज, पांडाज जो लाइब्रेरी है इसके अंदर में आपको मिलेगा कि कैसे हम किसी भी डेटा के साथ कैसे हम वर्क कर सकते हैं, कैसे हम उस डेटा का मैनिपुलेशन कर सकते हैं। यानी कि डेटा आपके पास होगा। अब डेटा का मतलब क्या?
तो भाई डेटा का मतलब कुछ भी हो सकता है, एक तरह का टीएक्सटी फाइल हो सकता है, एक तरह का इमेज हो सकता है, एक तरह का वीडियो हो सकता है, एक तरह का ये टेक्सचुअल फाइल हो सकता है, एक तरह का ये मे बी ऑडियो फाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस डेटा को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको मैनिपुलेट करना है, कैसे उसको रीड करना है, ठीक है, इसके लिए जितने भी फंक्शंस चाहिए वो सारे के सारे आपको पांडास में मिल जाएंगे। एक और आती है लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं साईपाई। साईपाई का मतलब होता है साइंटिफिक पाइथन। तो यहाँ पे कुछ और एडवांस्ड फंक्शंस मिलती है जो कि रिसर्च लेवल पे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साईपाई के बाद आपको दूसरी जो लाइब्रेरी, चौथी जो लाइब्रेरी पढ़नी है उसका नाम है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब ये क्या है? तो इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके यहाँ पे आप मल्टीपल ग्राफ्स बना सकते हो। जैसे कि अगर आप आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी होगी, आपने फिजिक्स पढ़ रखा होगा, तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर में हम कुछ ग्राफ्स पढ़ते हैं, राइट? लाइक साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ होता है ना, ऐसे ऐसे जो जो भी होता है। तो उस तरह के ग्राफ्स को हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे मैटप्लॉटलिब पे कर सकते हो। इसके बाद जो दूसरी आती है लाइब्रेरी वो होती है आपकी सीबॉर। इस सीबॉर भी मैटप्लॉटलिब की तरह ही एक लाइब्रेरी है और इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिकल फंक्शंस को आप ड्रॉ कर सकते हो और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशंस को आप यहाँ से ग्रैब कर सकते हो। तो सीबॉर भी इंपॉर्टेंट है। देन आता है प्लॉटली। प्लॉटली क्या है भाई? प्लॉटली भी इन्हीं के जैसी एक विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है और इसका इस्तेमाल करते हैं 3D ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। 3D ग्राफ्स होती है ना, लाइक इसकी अगर मैं बोलूँ कि भाई एक ऐसा फंक्शन है जो कि 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। लाइक इसकी आपका एक आपका क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन करने का मतलब है कि भाई आपका कुछ ऐसा हो जाए जैसे एफ एक्स इज इक्वल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। एक क्यूबिक इक्वेशन हुआ। इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे आप प्लॉट करोगे? तो एक तरह का 3D इक्वेशन है। अब 3D इक्वेशंस को प्लॉट करने के लिए उस टाइप की लाइब्रेरी भी चाहिए। तो प्लॉटली में आप 3D जो जितने भी 3D ग्राफ्स हैं उनको आप इजीली प्लॉट कर सकते हो। 3D 4D और मे बी हायर डायमेंशनल आप प्लॉटली की हेल्प से कर सकते हो प्लॉट। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके जो भी फंक्शंस है वो आपको जानने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाकी जो चीजें हैं वो तीनों लाइब्रेरीज में यानी मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, प्लॉटली में कुछ कुछ चीजें कॉमन होती हैं, तो आप किसी का भी आप इस्तेमाल करो, नो इश्यू, नो एनी ऑब्जेक्शंस। इसके बाद क्या करना है भाई? इसके बाद क्या करना है, अगर मैं इन चीजों को ऊपर करके करना पड़ेगा यार। हाँ ठीक है, अब प्लॉटली हो गई। हाँ ठीक है, अब लाइब्रेरीज के बाद अब आपको पढ़नी पड़ेगी यहाँ से क्या? अब आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का ही एक स्पेशल ब्रांच है जिसके अंदर में हम कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ते हैं, लाइक एज मीन, मीडियन, मोड, राइट, मे बी स्टैंडर्ड डेविएशंस, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस, सीडीएफ क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, राइट। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन या समथिंग कुछ ऐसा होता है, सीडीएफ सीएमएफ करके। तो ऐसी जो भी चीजें हैं यानी कि एक डेटा का जो भी स्टैट्स आपको ग्रैब करना है तो उसके लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ेंगी। स्टैटिस्टिक्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन डेटा साइंस, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए आप क्या करोगे? ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। एक यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाकर के आप सर्च कर सकते हो क्रिश नायक, KRISH, क्रिश NAIK नायक, क्रिश नायक आप यूट्यूब पे सर्च करो, उनकी चैनल आएगी। उस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी पाइथन लैंग्वेज की एक सीरीज, पाइथन लाइब्रेरीज की एक वीडियोस मिल जाएंगी आपको, और स्टैटिस्टिक्स की पूरी डिटेल्ड सीरीज मिल जाएंगी आपको, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ और 5-6 वीडियोस का, यूट्यूब वीडियोस का मैं लिंक दूंगा जो कि आपको स्टैट्स के थ्योरीज को समझने में आपको मतलब बेनिफिशियल होंगी। तो आप कृष्ण नायक की चैनल से आप सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ही इज अ वेरी गुड टीचर एंड अ वेरी गुड मेंटर एंड अगेन ही इज आल्सो वर्किंग एज अ डेटा साइंटिस्ट इन अ वेरी गुड कंपनी दैट इज नोन एज iNeuron.ai। तो उनके प्लेलिस्ट पे आपको सारी की सारी चीजों की वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर के वहां से इजीली सारी चीजें पढ़ सकते हो।
और बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी वीडियोस होंगे, उनका लिंक्स मैं आपको आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तो स्टैटिस्टिक्स हो गई। स्टैटिस्टिक्स के बाद क्या चाहिए भाई? इसके बाद आता है ईडीए। ईडीए क्या है? तो ईडीए क्या है? ईडीए का मतलब है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, राइट। अब जो भी डेटा हमारे पास आएगा, तो हम उस डेटा के साथ कुछ कुछ चीज़ें हम परफॉर्म करते हैं, यानी कि कुछ कुछ तरह का एनालिसिस हम करते हैं। हम उस डेटा के एक एक कॉलम्स का हम मीन निकालते हैं, मीडियन कैलकुलेट करते हैं, उसके 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 साथ में कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, राइट। कुछ स्क्वायरिंग या क्यूबिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस करते हैं, कभी कभी मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम उसके ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और एक डेटा क्या कहता है, एक डेटा के अंदर में किस टाइप का पैटर्न है, एक डेटा के अंदर से किस टाइप का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ये सारी की सारी चीजें आपको ईडीए से ही मिलेंगी। और ईडीए कैसे करते हैं, क्या कुछ चीजें होती है ईडीए में, ये सारा कुछ इस पे भी आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे स्नैक सर के चैनल पे। तो आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आप वहां से सीख लोगे। अगर आप आ, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती है, तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी के अभी इस सीरीज को स्किप नहीं करें, मतलब इस सीरीज को आप पॉज करें, यहाँ पे रोक दें, और सबसे पहले ये सारे के सारे टॉपिक्स को आप कवर करें, और फिर आप यहाँ पे आए। अब यहाँ से बात आती है कि आगे क्या आता है। तो यहाँ से आगे आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या है? तो जो भी डेटा आपको मिल रही है ना, तो इस डेटा का प्री प्रोसेसिंग करना है। कैसे होगा भाई डेटा का प्री प्रोसेसिंग? इसके लिए क्या कुछ है और ये क्या होता है और क्यों करेंगे? तो देखो भाई, हम क्या करते हैं ना, हम क्या करते हैं कि डेटा साइंस जो है, ये एक तरह का ऐसा टॉपिक है, एक तरह का ऐसा ब्रांच है, जहाँ की हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपने डेटा के ऊपर फिट करने का प्रयास करते हैं। ये डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है, और ये मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होते हैं, ये भी किसी भी टाइप के हो सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम ये भी समझेंगे कि डेटा कैसा होता है और इक्वेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, सब देखेंगे हम। लेकिन चूंकि डेटा जो होगा वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इक्वेशंस किसी भी टाइप के हो सकते हैं, और हमें उस इक्वेशन को उस डेटा पे फिट करने के लिए, मतलब उसके अकॉर्डिंग लाने के लिए अपने डेटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, यानी कि कुछ ऐसे सेट्स ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना पड़ता है, और अपने डेटा को उन प्रोसेस से फिट करवा करके, उनसे मतलब पास करा करके उस डेटा को फिट कराने लायक बनाया जाता है। एंड दिस होल सेट्स ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो इसमें जो भी स्टेप्स आएंगे उन सबको हम डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें डेटा मिलता है, हम ऑलरेडी क्रिस सर के चैनल से पाइथन लैंग्वेज पढ़ के आए हैं, हमें पता है कि पाइथन कैसे होता है, क्या कुछ चीजें होती है पाइथन के अंदर में, सब कुछ हमें पता है। हमने लाइब्रेरीज को भी हमने पढ़ लिया है भाई, हमको पता है कि नंपाई पांडास इस्तेमाल कैसे करते हैं, और फिर मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न प्लॉटली का इस्तेमाल करके कैसे भाई हम ग्राफ्स बना सकते हैं, सब कुछ हमने पढ़ लिया। तो स्टैटिस्टिक्स भी हमने पढ़ लिया, हमको सब पता है कि भाई क्या कुछ चीजें हमें करनी है, सब हमें पता है। अब हमें ये भी पता है कि ईडीए क्या होता है, हमने ईडीए भी कर लिया। अब ईडीए करने के बाद क्या है कि आपको कुछ इक्वेशंस को फिट कराना है अपने डेटा के ऊपर में। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी इक्वेशन को किसी भी डेटा पे आप फिट करा दोगे ऐसे ही। कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसे सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं। तो उन सारे सेट्स ऑफ रूल्स को फॉलो करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक सेट्स ऑफ ऑपरेशन से हमें उस डेटा को पास कराना होता है, और इसे ही डेटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। और इसके अंदर में बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं, बहुत सारे। तो ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के जो भी स्टेप्स होते हैं, ये हर एक मैथमेटिकल इक्वेशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। तो इस डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स को मैं अपने हर एक लेक्चर में, हर एक क्लासेस में, हर एक इक्वेशंस के अबाउट इसको मैं डिस्कस करता चलूंगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की चीज आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा भाई? तो इसके बाद आपके पास आती है चीजें लाइक इसकी वेट। इसके बाद अब आपको यहाँ से पढ़ना होगा क्या? तो यहाँ से अब आपको पढ़ना होगा वेट वेट वेट
थोड़ा और ऊपर कर लूं मैं। अरे यार, अरे यार, गजब है। चलो ठीक है भाई, छोटा हो जाए थोड़ा। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें पढ़ना होगा मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग क्या है भाई? ये मशीन लर्निंग क्या है और ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होती है, तो हमें ये चीज पढ़ना होगा। तो यहाँ क्या है, हम इसको कैसे समझेंगे? तो देखो भाई, डेटा साइंस क्या है, एआई क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होता है, ये चीज अभी तक मैं किसी को नहीं बताया। हाँ, थोड़ा बहुत मैंने बताया है कि भाई डेटा साइंस क्या होता है। तो डेटा साइंस एक तरह का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर में हम डेटा के साथ कुछ कुछ ऑपरेशंस करते हैं और उस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशंस को निकालते हैं। इसी को बोलते हैं डेटा साइंस। और फिर उन इंफॉर्मेशंस का इस्तेमाल कर करके हम किसी न किसी बिजनेस प्रॉब्लम्स को या किसी न किसी मेजर प्रॉब्लम को, ग्लोबल प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। ये डेटा साइंस, ठीक है। इस डेटा साइंस के अंदर में एक छोटी सी टॉपिक होती है। डेटा साइंस को आप समझ सकते हो एक बड़ा सा अम्ब्रेला, और उसके अंदर में एक छोटा सा सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग एक तरह का एक ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा अप्रोच है जिसके तहत हम अपने डेटा को फीड कराते हैं अपने कंप्यूटर्स के अंदर में, और हम कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे कि हमारा कंप्यूटर सीखता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर लर्न करता है, पढ़ता है, और फिर बाद में जब पढ़ लेता है, जब वो हमारा कंप्यूटर जब हमारा ट्रेंड हो जाता है, तो फिर हम उसी ट्रेंड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। और इसी चीज को हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? सो मशीन लर्निंग इज एन अप्रोच which is giving a kind of a capacity, a kind of a capability to train a computer system without teaching them in a very huge amount। मतलब मशीन लर्निंग एक ऐसा अप्रोच है कि इसका इस्तेमाल कर करके हम किसी भी कंप्यूटर को पढ़ा सकते हैं, उसे कुछ भी करा सकते हैं बिना बहुत सारा प्रोग्रामिंग किए हुए, ठीक है। प्रोग्रामिंग का मतलब यही होता है कि भाई आप कुछ ना कुछ चीजें उसको बता रहे हो तब वो काम करेगा। बट यहाँ पे बिना वो सारी चीजों को किए हुए कंप्यूटर सिस्टम को हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्मार्ट बना सकते हैं ताकि वो हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, और इसी चीज को बोलते हैं मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग का क्या डेफिनेशन होता है, ये चीजें हम आगे देखेंगे, आगे पढ़ेंगे बढ़िया से, लेकिन फिलहाल के लिए आप ब्रीफ में यही समझो, ये मशीन लर्निंग है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होते हैं और एआई क्या होता है? तो एआई कुछ नहीं है, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब दिमाग, स्मार्टनेस, नॉलेज, राइट। और हमारे अंदर में जो नॉलेज है ये नेचुरल नॉलेज, आई थिंक, राइट। ये जो ब्रेन है ना, ये एक तरह का नेचुरल, देयर इज नो एनी ह्यूमन हु इज गोइंग टू, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ह्यूमन जाकर के मतलब एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाए, मतलब खुद से एक ब्रेन बनाए, ए वाला ब्रेन नहीं बना सकता। बट कुछ हद तक ऐसा संभव है कि हम कुछ ऐसी सिस्टम्स को हम बनाएं, कुछ ऐसी सिस्टम्स को हम जनरेट करें जो कि एज ए ह्यूमन ब्रेन फंक्शन कर सके। और जब 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 इस तरह की जब सिस्टम बन जाती है, तो इसी इसी इंटेलिजेंस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि मानवों ने इसे बनाया है तो इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स क्या होती है भाई? तो मशीन लर्निंग के अंदर में डिफरेंट डिफरेंट तरह के मैथमेटिकल इक्वेशंस का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं बता रहा था कि भाई मैथमेटिकल इक्वेशंस को फिट करते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल इक्वेशंस का इस्तेमाल हम करते हैं, और उन सारी इक्वेशंस को ही हम यहाँ पे एल्गोरिथम्स बोलते हैं भाई, उनको यहाँ पे हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं। तो हम अपने इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे और एक एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को हम धीरे धीरे करके डिस्कस करते चलेंगे। उनके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, कैसे उनकी वर्किंग होती है, उनके बैकएंड में क्या होता है, सारी चीजों को हम देखेंगे इन डिटेल। उनके पीछे के मैथमेटिक्स को समझेंगे, हर एक टर्मिनोलॉजीज को डीपली देखेंगे, फिर कैसे इनको फिट करना है, कैसे इनको ट्रेन करना है, कैसे क्या चीजें होती हैं, डेटा कैसा होता है, सब कुछ देखेंगे हम आगे।
तो चलिए फिलहाल के लिए सारी की सारी चीज़ें हैं, तो आई थिंक कि मैंने ब्रीफ में मैंने सारी की सारी इंट्रो मैंने दिया है, जो कि आपको एक स्क्रैच लेवल से यहाँ तक लाने के लिए काफ़ी था एंड इट वाज इम्पॉर्टेंट। तो चलो अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, और मैं यहाँ से सिंस मैं यहाँ से एक मैं अपने कुछ नोट्स जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो मैं उनको मैं आपके आपके साथ में शेयर करूँगा। और क्या है कि फिर हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो चलो फिलहाल मैं अपने नोट्स को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये कुछ जेपीजेस फाइल्स हैं, कुछ फोटोज हैं जो कि मेरे नोट्स की हैं, और मैं इनका इस्तेमाल करूँगा आपको सारी चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है। तो फिलहाल या दिस इज द फर्स्ट नोट आई थिंक, बट आई थिंक दिस विल नॉट बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू. So what I will try to do that, wait a minute. Wait a minute. So what I will be doing? So I will just try to. Uh, okay. Okay. So guys, yeah, that is fine. ओके, सो यहाँ पे है कि भाई एआई क्या है, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई इज अ स्मार्ट प्रोडक्ट दैट मेक्स सम डिसीजन। हाँ, एआई एक तरह का स्मार्ट प्रोडक्ट है जो कि डिसीजन बनाता है, मतलब कि एक तरह का एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो कि डिसीजन दे सके, ठीक है। आई थिंक अब आपको कुछ क्लियर है, विजिबल हो रहा होगा। तो मैं साइड बाई साइड में इन चीज़ों को मैं ओपन कर दूंगा, आपको ये विजुअली दिखेगा, क्लियरली दिखेगा। तो एआई इज अ स्मार्ट प्रोडक्ट दैट मेक्स सम डिसीजन, ठीक है। तो एआई एक तरह का एक ऐसा सिस्टम है, सिस्टम हम बोल सकते हैं, एक तरह का ऐसा मेथोडोलॉजी बोल सकते हैं जो कि एक तरह के स्मार्ट प्रोडक्ट्स को बनाती है। दैट्स ऑल अबाउट योर एआई। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। और जो नेक्स्ट स्लाइड है ये आपकी कुछ ऐसी है भाई कि वेट अ मिनट गाइस। सो ओके okay, yeah, I think now it should be visible, but yeah, I think now it is visible, right? तो हम्म तो हाँ, अभी हमने देखा कि AI is just a smart, AI is a kind of a methodology which makes a smart decision. AI एक तरह का ऐसा स्मार्ट मेथोडोलॉजी है जो कि डिसीजंस बनाती है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे इन चीज़ों को। तो ऐसा है कि जस्ट गिव मी सम मिनट्स, राइट। आई थिंक ये चीज़ें आपको विजिबल हो रही है, नहीं तो फिर मुझे जूम करना पड़ेगा लिटिल बिट। या आई थिंक आप ये विजिबल होगा, या तो चलो देखते हैं क्या पूछा है। So, what is AI? So, by using some concepts, some mathematics, some algorithms, if we are able to build a product which can forecast, which can predict, which can identify, which can recognize, which can detect, which can try to track some patterns or relations, then this final product is AI. कैसे ये क्या बोलता है, ये पैराग्राफ क्या बोलता है? ये बोलता है कि by using some concept, कुछ कंसेप्ट्स का इस्तेमाल करके, सम मैथमेटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके, सम एल्गोरिदम्स, कुछ एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके, इफ अगर वी आर एबल टू बिल्ड अ प्रोडक्ट, अगर हम सक्षम होते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में, ऐसा प्रोडक्ट भाई, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट विच कैन फॉरकास्ट, जो कि आपके लिए फॉरकास्ट कर सकता है। फॉरकास्ट मतलब किसी भी चीज के बारे में बताना। विच कैन प्रिडिक्ट, जो आपके लिए कुछ निर्धारित कर सकता है। विच कैन आइडेंटिफाई, जो कि कुछ चीजों को पहचान सकता है। विच कैन रिकॉग्नाइज, या आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज, राइट। विच कैन डिटेक्ट, जो कि किसी चीजों को मतलब निर्देशित कर सकता है, या फिर उनको सांकेतिक रूप से उनको बता सकता है, दर्शा सकता है। विच कैन डिटेक्ट, विच कैन ट्राई टू ट्रैक सम पैटर्न, जो कि किसी तरह के पैटर्न को ट्रैक करने का प्रयास कर सकता है, या किसी रिलेशंस को समझने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को ही हम, ऐसे फाइनल प्रोडक्ट्स को ही हम
एआई बोलते हैं। जैसे मान के चलो ओला, ओला उबर या गूगल मैप्स, ठीक है, ये कैसे होती है भाई, ओला उबर कैसे काम करता है? तो ओला उबर का एक ही कंसेप्ट है कि सपोज दैट कि मे बी अगर हम अपने अपने होम टाउन की बात करें, अगर हम दिल्ली की बात करें, तो सपोज दैट कि भाई आप हो आनंद विहार टर्मिनल के पास में, और आपको वहां से जाना है कुतुब मीनार। क्या करोगे आप? आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी जानी है। आप पॉइंट ए से खड़े होकर के आप वहां पे ओला का कैब बुक करोगे या उबर का कैब आप बुक करोगे। तो इन्होंने बैकएंड पे कुछ ऐसी स्मार्ट चीजें को इन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है ताकि ये जो स्मार्ट जो भी सिस्टम्स हैं ये ट्रैक करेगा, आपका जियोग्राफिक लोकेशंस को ट्रैक करेगा, और फिर ये साथ ही ये भी ट्रैक करेगा, ये भी ये फाइंड आउट करने का प्रयास करेगा कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर जियोग्राफिक लोकेशंस पे हमारे कोई कैब्स वाले हैं क्या, हमारे बाइक्स वाले हैं क्या, हमारे कार्स वाले हैं क्या। अगर हैं तो उनको ये सिग्नल्स भेजेगा। देन वो बंदा आपके सिग्नल्स को, आपके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, फिर आपकी बुकिंग होती है, फिर वो बंदा आता है आपको क्या आप बैठते हो कैब के अंदर, देना जाते हो। तो ये कुछ इस तरह के ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स हैं, कुछ इस तरह के स्मार्ट मैकेनिज्म्स हैं जिनका इस्तेमाल कर करके हम इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील कर रहे हैं, कुछ किसी तरह के ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एआई, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एआई, दो तरह का एआई होता है। तो फर्स्ट वन इज एक्चुअल एआई, द सेकंड वन इज ऑगमेंटेड एआई, ठीक है। अब भाई एक्चुअल एआई क्या है, ऑगमेंटेड एआई क्या है, हम ये देखेंगे। So in case of actual AI, we give some data set to a system and it will do everything by thinking or relating about those things and finding a pattern out of them and finally making some smart decisions. This is actual AI. और augmented AI क्या है? तो augmented AI क्या है? Wait a minute guys, wait a minute. So, okay, yeah. So augmented AI क्या है? In this case, human resources and computers both are getting used for making some models which make some decision. देखो भाई, AI का तो मतलब हमने समझ लिया कि AI क्या है। मतलब AI कुछ ऐसे टेक्निक्स है जिसका इस्तेमाल कर करके हम कुछ स्मार्ट डिसीजंस बनाते हैं। बट ये AI दो टाइप का हुआ, एक्चुअल AI और ऑगमेंटेड AI। एक्चुअल AI का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को बस डेटा सेट दे रहे हैं, डेटा फीड करा रहे हैं, और सब कुछ हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकली करता है। मतलब ईडीए भी खुद करता है, फिर प्रोसेसिंग भी खुद करता है, और डिसीजंस भी खुद देता है, सब कुछ खुद ब खुद करता है। ये होता है एक्चुअल एआई। बट जो हमारा ऑगमेंटेड एआई होता है वो क्या होता है? तो जो हमारा ऑगमेंटेड एआई होता है उसमें हमारे कंप्यूटर्स के साथ साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल होता है। लाइक एज की ह्यूमन रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि इसमें इंसानों का भी कुछ ना कुछ योगदान होता है। यहाँ पे हमारे आपके जैसे जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, जो एआई इंजीनियर्स होते हैं, वो यहाँ आकर के कुछ कंट्रीब्यूशंस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ईडीए करते हैं, डेटा लोडिंग करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, उन कुछ प्रोसेसिंग्स करते हैं, एनालाइजिंग करते हैं, ईडीए करते हैं, देन फिर मतलब डेटा प्रिप्रोसेसिंग करेंगे, देन फिर एमएल के मॉडल्स को, एमएल के एल्गोरिथम्स को फिर वो ट्रेन करेंगे, फिट करेंगे, फिर जाकर के एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जो कि कुछ कुछ डिसीजंस को दे सकता है, राइट। तो ये कुछ ऐसी तरह की चीजें हैं गाइस जो कि आई थिंक कि मतलब कि एक्चुअल एआई और ऑगमेंटेड एआई होती है, और ये आपको समझना पड़ेगा। आई होप कि आई थिंक दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर विद यू। तो एक्चुअल एआई और ऑगमेंटेड एआई ये कुछ ऐसा होगा। अब चलते हैं आगे। हाँ, तो AI is a bigger umbrella. Inside it, we get data science as its component. AI एक तरह का बिगर अम्ब्रेला है और इसके अंदर में डेटा साइंस को हम एक कंपोनेंट के तौर पे लेते हैं। डेटा साइंस क्या है? डेटा साइंस इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बट इट्स एन एरिया वेयर बाय यूजिंग अ डेटा सेट वी बिल्ड सम स्मार्टेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन व्हिच मेक्स सम डिसीजन। मैंने पहले भी बताया था कि डेटा साइंस एक तरह की ऐसी टॉपिक, एक तरह का ऐसा एरिया है जहाँ पे हम एक डेटा सेट का, एक डेटा का इस्तेमाल करते हैं और कुछ स्मार्ट सॉल्यूशंस बनाते हैं, और फिर ये सॉल्यूशंस बाद में हमें किसी न किसी तरह का डिसीजंस देते हैं। आगे हम देखेंगे कैसा क्या ये चीज़ें कैसी होती है, क्या कुछ होता है, तो आगे हम देखेंगे इन डिटेल।
Inside data science, we find statistics, machine learning, deep learning, computer vision, and NLP, etc. as its component. और इस डेटा साइंस के अंदर में, एआई के अंदर में हमें बहुत छोटी छोटी चीजें मिलती हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मिलते हैं, जैसे कि स्टैट्स मिलता है, पाइथन प्रोग्रामिंग मिलती है, आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के टूल्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी अदर टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मिलते हैं, साथ ही साथ मशीन लर्निंग मिलता है, डीप लर्निंग मिलता है, कंप्यूटर विजन मिलता है, एनएलपी मिलता है। अब ये चीजें क्या है क्या नहीं है, इनके बारे में हम देखेंगे आगे अपने फर्दर सेशंस में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ही जानो कि एआई डेटा साइंस एक बड़ा अम्ब्रेला है और उसके अंदर में सारी छोटी छोटी मछलियां हैं, ठीक है। तो चलो, अब भाई मशीन लर्निंग क्या है, तो देखो भाई, आज के पहले यानी कि 1878 में अर्थुर सैमुअल करके एक प्रोग्रामर हुआ किए थे, जिन्होंने की मशीन लर्निंग की डेफिनेशंस दी थी। तो ये मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई दैट गिव्स कंप्यूटर्स द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। मतलब कंप्यूटर से आपको कुछ काम करवाना है, कुछ भी फंक्शन आपको कराना है, तो मशीन लर्निंग एआई का एक ऐसा सबसेट है जो कंप्यूटर को कुछ ऐसी सक्षमता देता है, मतलब देता है जिससे कि कंप्यूटर्स के अंदर में शक्ति आती है, मतलब वो सक्षम हो जाते हैं कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं बिना एक्सप्लिसिटली प्रोग्रामिंग किए हुए। मतलब कि बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करने की आवश्यकता नहीं है, बस छोटे छोटे चंक्स में ही आपको काम करने हैं और फिर ये आपको एक अच्छी रिजल्ट्स देंगे। सो दिस इज द यूनिक डेफिनेशन गिवन बाय अर्थुर सैमुअल, जो कि एक बहुत ही बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट हुआ करते थे। आज नहीं, मतलब 1800 के आसपास ही थे, 1858 या 1878 के आसपास थे। आप अर्थुर सैमुअल के बारे में आप देख सकते हो, और ये डेफिनेशन मशीन लर्निंग की डेफिनेशन आपको विकिपीडिया के पेज पे भी मिल जाएगी, जो कि अर्थुर सैमुअल के द्वारा दिया गया है। अब मशीन लर्निंग के बारे में आपको पता चल गया मशीन लर्निंग भाई क्या है। अब मशीन लर्निंग को हम 5 तरह के कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो जो फर्स्ट कैटेगरी उसको बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर एक कैटेगरी होती है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, और इसके अंदर में एक और कैटेगरी हो जाती है जिसको कि हम डीप लर्निंग भी बोलते हैं। हालांकि हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट डीप लर्निंग भी होती है इस एमएल के अंदर में ही। एंड देन एक रेनफोर्समेंट लर्निंग होती है। एक कैसी ये टॉपिक्स हैं, कैसी ये कैटेगरीज हैं, किस बेसिस पे इनको आई थिंक किस बेसिस पे इनको मतलब कि कैटेगराइज किया गया है, ये सारी चीजें हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपने सेशंस में हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या होता है ये देखेंगे, फिर इसके बाद में हम देखेंगे कि भाई आगे की जो भी चीजें हैं लाइक इसकी अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलो यहाँ पे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या है। तो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के लिए क्या है, तो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एमएल यानी मशीन लर्निंग इन विच वी वर्क्स विद डेटा सेट्स हैविंग बोथ, क्या बोथ, मतलब ये कहना चाहता है कि भाई सुपरवाइज्ड लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सबसेट है और इसके अंदर में हम वैसे डेटा सेट्स के साथ काम करते हैं जिसके अंदर में होता है डेटा सेट्स हैविंग बोथ, मतलब होता है। अब बोथ के बाद क्या है वो हमें नेक्स्ट पेज में मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं भाई। फिर हाँ, यहाँ पे 3.jpg आ गई हमारी, और फिलहाल के लिए हम इस jpg को हम क्लोज कर देंगे और फिर यहाँ पे हम चले आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव मी सम टाइम, व्हाट आई हैव टू डू। इसको पहले मैं ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलो बढ़िया, अब मैं चलूँगा यहाँ, ठीक है। देखो हाँ, तो विच हैविंग बोथ इनपुट्स फीचर्स एंड आउटपुट्स लेबल्स, मतलब मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ ऐसे डेटा सेट्स होते हैं जिसके अंदर में आपको इनपुट्स भी होते हैं और आउटपुट्स भी होते हैं, मतलब फीचर्स भी होते हैं, लेबल्स भी होते हैं। मतलब कि मशीन लर्निंग के अंदर में जो भी कैटेगरीज बनाई गई है ना, ये उनके साथ में जिस टाइप के डेटा का इस्तेमाल आप करोगे उस डेटा के टाइप पे डिपेंड करता है कि उसकी कैटेगरी क्या होगी। तो जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है सुपरवाइज्ड लर्निंग ना, तो उसके अंदर में है कि भाई क्यों सुपरवाइज्ड लर्निंग हम बोलेंगे उसको, तो इसलिए बोलेंगे उस डेटा के अंदर में फीचर्स भी होते हैं और लेबल्स भी होते हैं, और इन अदर वर्ड्स
अब भाई फीचर क्या है, लेबल क्या है आपको नहीं पता है, और डेटा कैसा दिखता है ये भी आपको नहीं पता है। तो चलिए इसके लिए हम चलते हैं, फिलहाल के लिए हम एक डेटा आपको ओपन करेंगे। और डेटा कहने का मतलब है कि भाई डेटा किसी भी टाइप का हो सकता है। ये डेटा इमेज हो सकता है, मतलब फोटो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, स्पीच हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, किसी भी टाइप का फाइल हो सकता है, पीडीएफ फाइल हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकता है, आपका सॉरी, अरे अरे यार क्या बोल रहा हूँ, हाँ टेक्स्ट फाइल हो सकता है, आपका एक्सेल फाइल हो सकता है, ये आपका भाई बहुत तरह के फाइल्स होते हैं। जेसॉन फाइल्स हो सकता है, बीसॉन फाइल्स हो सकता है, बहुत तरह के फाइल्स होते हैं। तो धीरे धीरे करके हम उन सारे फाइल्स के बारे में देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स क्या होते हैं, कैसे उनके साथ प्रोसेसिंग होता है, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, सीएसवी फाइल्स होता है, टीएसवी फाइल्स होता है, बहुत तरह के फाइल्स होते हैं, तो सबको देखेंगे हम। तो डेटा भाई किसी भी टाइप के फाइल में हो सकता है, लेकिन ये डेटा होता क्या है? तो यहाँ मशीन लर्निंग के अंदर में जिस तरह के डेटा सेट के साथ हम काम करते हैं वो होती है एक टैबुलर डेटा। टैबुलर डेटा कहने का मतलब क्या हुआ? तो टैबुलर